to the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Good morning everyone. This is Acharya Ashutosh Kumar Pandey from Saraswati Vidya Mandir. And in this video I will teach you The Little Girl, lesson number 3 from the book Beehive of class 9th. And it is clearly visible on your screen. The title of this story is The Little Girl. This story has been written by Katherine Mansfield. What is the theme of this story? The theme of this story, the reason behind writing this story is to tell that whatever our parents do for us, whatever our parents take an action against us, sometimes parents beat us, but whatever they do not do the things for themselves, but just to develop ourselves. And that is why before you read, a line has been written, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? क्या अपने पेरेंट्स को आप ज़्यादा फील करते हैं पहले की तुलना में जब आप छोटे थे? Perhaps शायद you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. आपके पेरेंट्स के कुछ एक्शन होंगे जिससे आप अपसेट हो जाते होंगे, उदास हो जाते होंगे. चूँकि अब आप बड़े हो चुके हैं तो आपको ये समझ में आता होगा कि उनके वो एक्शन जो थे उनके पीछे कारण क्या हुआ करते थे. This is a story about a little girl whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये कहानी एक छोटी सी लड़की के बारे में है जिसकी फीलिंग अपने फादर के बारे में जो पहले डर से भरा था अब वो अंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ है. और शायद इसकी गूंज हर घर में मौजूद है कि पहले बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स से डरते हैं, लेकिन जब वो समझ जाते हैं कि उनके पेरेंट्स का वो बिहेवियर, वो नेचर ऐसा क्यों है, तो फिर वो अपने पेरेंट्स को समझ जाते हैं. Now begin with paragraph number 1. There are total 12 paragraphs in this story. So maybe possible there may be 3 videos of this lesson, but I will try to sum up this lesson in 2 videos. To the little girl, he was a figure to be feared, a person to be feared and avoided. Means the little girl always ignored his father and she always scared with him. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriers growing fainter and fainter down the long road. हर सुबह उसके पिताजी ऑफिस जाने से पहले उसके कमरे में आते हैं, उसे कैजुअल किस देते हैं, उसका रिप्लाई अपने फादर को गुड बाय कह कर देती है और बहुत ही ग्लैड फील होता है उस छोटी सी बच्ची को जब उसके पापा की गाड़ी की आवाज़ धीरे धीरे सड़क पर फेंट हो जाती है, मतलब कम हो जाती है. कम होने का मतलब है कि वह गाड़ी घर से दूर चली जाती है ऑफिस की तरफ. इन द इवनिंग, जब शाम को, when he came home, he stood near the staircase and heard his loud voice in the hall
Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. शाम को जब वो वापस आते हैं तो ये छोटी सी बच्ची स्टेयरकेस के पास खड़ी हो जाती है, सीढ़ियों के पास, और अपने पिताजी के लाउड वॉइस को सुनती है। उनके कुछ ऑर्डर्स होते हैं। पहला है कि मेरे चाय को ड्राइंग रूम में लाया जाए। क्या पेपर अभी तक नहीं आया, न्यूज़पेपर? मदर को कहते हैं जाओ और देखो क्या पेपर बाहर पड़ा है, और साथ ही साथ मेरे स्लीपर्स मतलब मेरे चप्पल भी लेते आना। Paragraph number 2. Kezia, the name of the little girl. Mother would call to her. जब ये ऑर्डर्स आते हैं तो माँ केजिया को बुलाती है और कहती है केजिया से, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. माँ कहती है कि तुम अच्छी लड़की हो तो जाओ हॉल में और पापा के जूते उतार दो. बच्ची ऊपर रहती है, वो सीढ़ियों से धीरे धीरे करके नीचे आती है, हॉल की तरफ जाती है, दरवाजे को खोलती है और ड्राइंग रूम में आती है. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. जैसे ही वो बच्ची उस कमरे में प्रवेश करती है, उसके पापा का चश्मा उनकी आंखों पर होता है और अपने चश्मे से ही वो अपने बच्ची की तरफ देखते हैं, और देखने का तरीका ऐसा होता है कि वह उस छोटी सी बच्ची को टेरिफाइंग कर देता है, डरा देता है. और पिताजी कहते हैं कि वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? जल्दी आओ और मेरे जूते उतारो, उसे बाहर रख दो. क्या तुमने आज कुछ अच्छे काम किए हैं? Kezia was a very little girl, so she was scared all the time with his father. So when she had to reply before him, she stammered. वो हकलाने लगती है और कहती है, I don't know father. मीन्स मुझे नहीं पता. उसके पिताजी भी उसकी कॉपी करते हैं और कहते हैं, यू डोंट नो. इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, अगर तुम इस तरह से हकलाओगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. सी नेवर स्टटर विथ अदर पीपल. समझ ही गए होंगे आप कि वो दूसरों के साथ कभी नहीं हकलाती है. had quite given it up. मतलब थोड़ा सा भी नहीं हकलाती दूसरों के साथ, लेकिन हकलाती किसके सामने है? तो बट ओनली विद फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. हकलाने का रीज़न दिया है कि पापा के सामने प्रॉपर तरीके से वर्ड्स को बोलने के लिए वो इतना प्रयास करती है, इतना एफर्ट लगाती है कि वो प्रॉपरली बोलने की जगह पर हकलाने लगती है. कभी कभी हम भी कुछ काम को बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए इतना अच्छा से करना चाहते हैं कि वो काम ही ख़राब हो जाता है. What is the matter? What are you looking so stressed about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. वो पूछते हैं क्या हुआ इस लड़की को, ये खुश क्यों नहीं है? और माँ से कहते हैं कि आप कृपया इस बच्ची को सिखाएंगी कि ये कभी भी सुसाइड के रास्ते पर ना जाए.
और केजिया को कहते हैं कि मेरा चाय का प्याला लेकर आओ और टेबल पर केयरफुली रख दो। ही वॉज सो बिग, उसके पापा हाइट में बहुत बड़े हैं, उनके हैंड्स बड़े हैं, उनके नेक बड़े हैं, और स्पेशली उनका माउथ व्हेन ही यॉन, YAWN, यॉन का मतलब होता है जमाई लेना। जब वो मुंह खोलते हैं जमाई लेने के लिए तो केजिया को बहुत ही बड़ा नज़र आता है उनका मुंह। और केजिया कहती है कि थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, अगर मैं अपने पिताजी के बारे में अकेले में सोचूं तो इट इज़ इक्वल टू थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। और आप भैया बहन एक लेसन पढ़े होंगे क्लास 8 में, द सेल्फिश जाइंट। तो जाइंट का मतलब आप जानते हैं राक्षस होता है, दानव। तो केजिया का कहना है कि जब वो अकेले में अपने पिताजी के बारे में सोचती है तो उसको लगता है कि मैं किसी दानव के बारे में सोच रही हूँ। On Sunday afternoons, grandmother sent her down into the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे आफ्टरनून में केजिया की दादी उसे भेजती है कि जाओ ड्राइंग रूम में और मम्मी पापा के साथ कुछ बात करो केजिया। बट अ लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड, लेकिन वो जब भी पहुंचती है ड्राइंग रूम में वो क्या पाती है कि मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट। माँ कुछ पढ़ती रहती है और पिताजी सोए रहते हैं। कहाँ पे? ऑन द सोफ़ा। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, चेहरे पे रुमाल है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और सोफे पे जो कुशन रखा होता है तो उनका पैर कुशन के ऊपर। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। स्लीपिंग साउंडली का मतलब वो गहरे नींद में सोते हैं, और स्नोरिंग मतलब वो खर्राटे भी लेते हैं। पिक्चर भी आप देख सकते हैं जो ऊपर बताया गया है, सेम वैसा ही है। जब वो ड्राइंग रूम में आती है, मदर कुछ मैगजीन्स पढ़ रही हैं, कुछ न्यूज़पेपर, पापा सोए हैं, रुमाल चेहरे पे है, पैर कुशन्स पे हैं, एंड ही वाज स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। सी सैट ऑन ए स्टूल, बेचारी अकेले आती है, स्टूल पे बैठ जाती है। ग्रेवली मतलब गंभीरता से। वाच्ड हिम, अपने पिताजी को देखते रहती है। अनटिल ही वोक, जब तक वो जग न जाए। एंड स्ट्रेच्ड, स्ट्रेस मतलब हो गया यहाँ पे अंगड़ाई लेना। एंड आस्क्स द टाइम, और टाइम नहीं पूछते। और टाइम पूछने के बाद तब वो जाकर केजिया को देखते हैं और कहते हैं डोंट स्टेयर सो केजिया, ऐसे मत घूरा करो, ऐसा देखने से लगता है कि तुम एक ब्राउन आउल की तरह नज़र आती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स, जब केजिया को घर पे छोड़ दिया गया था विथ अ कोल्ड, मतलब उसे सर्दी लग गई थी, उसकी ग्रैंड मदर ने उसे बताया दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. Her grandmother informed her that her father's birthday was about to come in the next week, so she should give him a present by making a pin cushion, a kind of cushion, from a beautiful piece of yellow silk cloth. Kezia, you should give a gift to your father on his birthday. Let me see the time. Okay, if I will read paragraph number 5, it will be a long video, so I would like to end this video here. The next paragraph we will read in the next video. Thank you very much. Thank you.